ایران میں چونکہ منصور نام کے ایک ایرانی شہزادے نے تیمور کے خلاف بغاوت برپا کر دی تھی اور ایران پر تیمور نے اپنی طرف سے جن شہزادوں کو حاکم مقرر کیا تھا منصور نے انہیں زیر کر لیا تھا، اور اس منصور نے اصفہان اور شیراز دونوں شہروں کو اپنی طاقت و قوت کا مرکز بنا لیا تھا۔ لہٰذا تیمور ایک جرار لشکر کے ساتھ منصور کی سرکوبی کے لیے سمرقند سے روانہ ہوا، اور اس روانگی کے وقت اس نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اسے اپنے پاس رکھا، دوسرا حصہ اپنے بیٹے شاہ رخ کی کمانداری میں دیا، جبکہ تیسرا حصہ امیر تیمور کے پوتے محمد سلطان کے پاس، اور چوتھے حصے کا سالار امیر تیمور کا دوسرا پوتا اور محمد سلطان کا بھائی پیر محمد تھا۔ معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو تاریخی ناول ظلمات، قسط نمبر 7۔ یوں تو اس لشکر نے ایرانی بغاوتوں کو فرو کرنے کے لیے سمرقند سے کوچ کیا۔ ایرانی سرحد کے قریب اس لشکر پر جو پہلی افتاد پڑی وہ یہ بھی تھی کہ راستے میں ایک بہت بڑے گروہ نے بھوکے بھیڑیوں کی طرح تیمور کے لشکر پر حملہ کر دیا، اور یہ حملہ آور سب حشیش کے نشے میں بری طرح دھوتے، لیکن جواب میں تیمور بھی ان پر ایسی خوخاری اور بے باکی سے حملہ آور ہوا کہ اس سارے گروہ کو اس نے تہہ تیغ کر دیا، اور ان لوگوں کے کوہستانی نشیمن کو بھی اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ حشیشان کے اس گروہ کا صفایا کرنے کے بعد تیمور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا تھا۔ دوسری طرف منصور کو جب تیمور کے آنے کی اطلاع ہوئی تو وہ کوئی زیادہ فکر مند نہ ہوا، اس لیے کہ وہ تیمور سے ایسے ہی توقع رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر چکا تھا، اور تیمور سے مقابلہ کرنے کے لیے اس نے ایک جرار لشکر تیار کر لیا تھا۔ پس تیمور کا مقابلہ کرنے کے لیے منصور نے بھی اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ منصور نے اپنے پاس رکھا اور ایک گھات میں بٹھایا بیٹھ گیا، تاکہ کسی مناسب موقع پر وہاں سے نکل کر تیمور پر حملہ ہو سکے، جبکہ اپنا دوسرا آدھا لشکر اپنے ایک نائب کی کمانداری میں دے کر اس نے قلعہ سفید کی طرف روانہ کر دیا تھا، تاکہ وہ تیمور کی راہ روکے۔ یہ سفید نام کا قلعہ ایران کی قدیم پہلوان رستم کا تھا اور ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ قلعہ ایک بلند کوہستانی چوٹی پر واقع تھا، اور اس کے اندر داخل ہونے کا بھی صرف ایک ہی راستہ تھا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک ایسے وسیع میدان میں بنا ہوا تھا جس کی لمبائی اور چوڑائی 3-3 میل تھی، اور یہاں سے دریا اور چشموں کے علاوہ مزروع زمین تھی اور پرندوں کی بہتات تھی۔ ایران کا سابق حکمران زین الدین، جسے منصور نے معزول کر کے اندھا کر دیا تھا، وہ بھی اسی قلعے کے اندر مبعوث تھا۔ یہ قلعہ چونکہ پہاڑ کی بلندی پر تھا، جس کے اطراف میں خطرناک قسم کی ڈھلانیں تھی، لہٰذا یہ قلعہ ہر طرح کے خطرات اور خدشات سے محفوظ خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان خطرناک ڈھلانوں ہی کے باعث اس قلعے پر منجنیقوں کے ذریعے پتھر بھی نہ پھینکے جا سکتے تھے، اور نہ ہی اس کوہستانی سلسلے کے اندر سرنگیں کھود کر آگے بڑھنا ممکن تھا۔ اس لیے کسی بادشاہ نے آج تک اس قلعے کا محاصرہ تک کرنے کا خیال نہ کیا تھا، اور پھر اس قلعے کی طرف جانے والے راستے اس قدر تنگ اور دشوار گزار تھے کہ ان راستوں کے ذریعے قلعہ شکن آلات اوپر نہ لے جائے جا سکتے تھے، اور اوپر جانے والے یہ راستے ایسے تنگ تھے کہ صرف 3 آدمی بآسانی 3000 کے لشکر کو اوپر چڑھنے سے روک سکتے تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اس قلعے کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا، اور انہی بنیادوں پر منصور نے اپنے آدھے لشکر کو تیمور کی راہ روکنے کے لیے اس قلعے پر متعین کر دیا تھا۔ منصور نے اپنی طرف سے تیمور کی راہ روکنے کے لیے یہ بہترین قدم اٹھایا تھا۔ دفاع کے ان قدرتی وسائل کے علاوہ ایرانیوں نے اس قلعے کے اوپر ہر موڑ پر مضبوط اور سنگین برج بھی تعمیر کر رکھے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں زرعی پیداوار، مویشی اور پرندے بھی اس قدر زیادہ تھے کہ انہی سے قلعے میں رہنے والوں کی ضروریات پوری ہوتی رہتی تھی، اور فاقوں کی بنا پر انہیں اطاعت کر لینے پر مجبور نہ کیا جا سکتا تھا۔ اور اس سفید نام کے قلعے سے متعلق یہ گمان کیا جاتا تھا کہ اس قلعے کے اندر رہنے والوں کو صرف موت ہی زیر کر سکتی ہے۔ گو یہ قلعہ بظاہر ناقابل تسخیر لگتا تھا، لیکن تیمور نے بھی شاید اسے فتح کر لینے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، اس لیے کہ جس روز اپنے لشکر کے ساتھ تیمور اس قلعے کے پاس پہنچا، اس روز ہی اس نے اس پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ تیمور نے اپنا پڑاؤ اس قلعے کے عین سامنے ایک پہاڑی کے اوپر بنایا، اور نیچے تلہٹی میں اس نے اپنے عساکر کو پھیلا دیا تھا۔ تیمور نے جب اس قلعے پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا تو اس کا لشکر چیونٹیوں کی طرح قلعہ سفید کی طرف چڑھنے لگا، لیکن اس جگہ جا کر اس کے عساکر رک گئے جہاں اوپر جانے کے لیے عمودی چٹانوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ یہاں سے تیمور نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر قلعے کی طرف بڑھے اور قلعے کے اطراف کی حفاظتی برجوں پر حملہ کر دیں۔ جس وقت تیمور کے لشکریوں نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھوڑے سے اتر کر اوپر چڑھنا شروع ہوئے تو قلعے کے اوپر سے بھی اس کا رد عمل ظاہر ہوا، اور وہ اس طرح قلعے کی طرف سے تیز اور طوفانی انداز میں تیر اندازی کی گئی تھی، جس کے باعث اوپر چڑھنا دشوار ہو گیا تھا۔ بہرحال تھوڑے تھوڑے وقفے سے تیمور کے تاتاری سپاہی اپنے ناروں کے شور میں اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے، لیکن اوپر سے برستے تیر اور وزنی نکیلے پتھر ان کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ شام تک یہی سلسلہ جاری رہا، لیکن کچھ بھی نہ بن سکا اور لشکر کو ناکام و نامراد نیچے وادی میں اترنا پڑا، اور جس وقت اوپر سے تیر اندازی اور سنگ باری کے باعث مرنے والوں کی لاشیں اتاری گئی تو لشکر کے چہروں پر تفکر اور تردد کے آثار تھے، لیکن تیمور کے چہرے پر انتقام کے الاؤ بھڑک اٹھے تھے۔
अपने मरने वाले सिपाहियों की लाशों को दफन करने के बाद जब तैमूर फारिग हुआ तो एक सवार तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ इसकी तरफ आया। तैमूर ने इसे पहचान लिया, इसलिए कि वो सवारान नाजरों में से एक था जिन्हें इसने नूरुद्दीन के हालात से मुतल्लिक बाखबर रखने पर मामूर किया था। वो नाजिर जब करीब आया तो इसके कुछ बोलने से कबल ही तैमूर ने इसकी मुसर्रत चेहरे की तरफ देखते हुए पुरुमीद लहजे में पूछा, क्या नूरुद्दीन की तरफ से तुम मेरे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए हो? इस नाजिर ने और ज्यादा करीब आकर कहा, ए आका, मैं आपके लिए खुशकुन खबर लेकर आया हूँ। मेरे आका, अमीर नूरुद्दीन ने पहले के इनफरादी मुकाबले में यूरोप के ग्रैंड मास्टर की गर्दन काट कर रख दी और फिर खुले और वसी मैदानों के अंदर एक भयानक और होलनाक जंग के बाद वेटुलट को बदतरीन शिकस्त दी। और न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि पोलैंड की सरहदों के इसने वेटुलट इसके लश्कर का ऐसे खतरनाक अंदाज में ताकुब किया जिस तरह भूखे भेड़िए गोरखरों के गोल का ताकुब करते हैं। पोलैंड तक वेटुलट का पीछा करने के बाद अमीर नूरुद्दीन पलटे और अब वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस रफ्तार से वो सफर कर रहे हैं, अगर इसी रफ्तार से उन्होंने इस तरफ अपना सफर जारी रखा तो मुझे उम्मीद है वो एक दो रोज में यहाँ तक आपके पास पहुंच जाएंगे। तैमूर ने बेपनाह खुशी के इजहार में कहा, ऐ नूरुद्दीन, तूने ग्रैंड मास्टर को इनफरादी मुकाबले में न सिर्फ जेर किया बल्कि इसकी गर्दन काट दी। ऐ नूरुद्दीन, बाखुदा तो इस काबिल है कि तुझे एक नेक खू और इकलौते बेटे की तरह चाहा जाए। ऐ नूरुद्दीन, तू यकीनन एक ऐसा जर्नेल है जिस पर हर मुसीबत और हर जरूरत के वक्त में भरोसा कर सकता हूँ। नूरुद्दीन से मुतल्लिक इस कदर कहने के बाद तैमूर मुस्कुराता हुआ अपने खेमे में चला गया था। दूसरे रोज तैमूर ने फिर अपने लश्कर को इस किला पर हमलावर होने का हुक्म दिया। अब इसने एक और तरीका अपनाया। इसने अपने लश्करियों को छैनियां मुहैया कर दी और नीचे वादी में इसने अपने सारे नक्कारे जमा कर दिए थे। और जब हमला शुरू हुआ तो नक्कारों पर चोटें पड़ने लगी ताकि सिपाहियों के अंदर एक जोश और जज्बा पैदा होता रहे। और इसी जज्बे और जुनून में लश्करी छैनियों से चट्टानों पर जरबे लगाकर रास्ता बनाते हुए चढ़ने लगे। गुज़श्ता दिन की तरह आज भी ईरानी कोहस्तान के ऊपर से पत्थर और तीरों की बारिश करते रहे, लेकिन तैमूर के सिपाही अपने सरों पर ढाले रखकर अपने अपने काम में मसरूफ रहे और किले के एक बुर्ज को हदफ बनाते हुए आगे बढ़ने लगे थे। अचानक कोहस्तान के ऊपर से एक आवाज बुलंद हुई, अमीर फतहमंद हुआ और इसके सामने ईरानी ज़ेर हो गए। तैमूर इसके सारे लश्करों ने देखा ये ऐलान मशहूर सालार आग बोगा कर रहा था। वो इस वक्त तकरीबन 200 फीट की बुलंदी पर चट्टानों के ऊपर एक कोहस्तानी चोटी पर उस रास्ते के करीब था जो किले के ऊपर जाता था। तैमूर आग बोगा की इस कारगुजारी पर बेहद खुश हुआ और अपने बेटे शाहरुख को इस समझ से आगे बढ़ने का हुक्म दिया था। अब आग बोगा इस ईरानी बुर्ज पर तीर बरसाने लगा था जो इससे करीब ही था। इस दौरान शाहरुख भी अपने लश्कर के साथ वहां पहुंच गया और ईरानी फौज की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी गई। फिर तातारी उस रास्ते से बादलों की तरह अंदर घुस जाने वाली शफक, फैलती रोशनी और दबीज स्याहियों में सुबह की किरण की तरह बढ़ते चले गए थे। तातारियों को अब वो रास्ता हाथ आ गया था जिसके जरिए वो कोहस्तान के ऊपर जा सकते थे। ईरानी भी जान गए थे कि तातारी ऊपर आने वाले रास्ते पर काबिज हो गए हैं, लिहाजा उन्होंने संगबारी और तीरंदाजी में और ज्यादा शिद्दत पैदा कर दी थी। लेकिन तातारियों ने इसकी कोई परवाह न की और ढाले सरों पर रखे वो आगे बढ़ते रहे। ईरानी बेअसास उम्मीदों और दायमी थकन का शिकार होते दिखाई देने लगे थे, जबकि दूसरी तरफ तातारी अपने हौसले बुलंद रखे हुए थे। बर्फ के तूफान गूंगे सागरों की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। इस समय इनकी आंखों में फतह की उम्मीदों के बाइस बोझल थी और इनकी सफाक तलवारों की धार रास्ते में आने वाली हर शय को रेगे सहरा की तरह उड़ाती चली जा रही थी। दूसरी तरफ मंसूर भी अपने लश्कर के साथ इस किले के करीब जरा फासले पर पड़ाव करके घात में बैठ गया था। उसे उम्मीद थी कि तैमूर इस किले को फतह न कर सकेगा और जब वो अपने तातारी लश्कर के साथ यहाँ से नाकाम व नामुराद लौटेगा तो इसके पुश की तरफ से हमलावर होकर इसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगा ताकि तैमूर को फिर कभी इन सरजमीनों का रुख करने की जरूरत न हो। लेकिन कुदरत शायद कुछ और ही फैसले कर चुकी थी। आखिरकार शाहरुख के जोरदार हमलों ने ईरानियों के सामने वाला बुर्ज खाली करने पर मजबूर कर दिया। अब तातारियों के लिए कोहस्तान के ऊपर चढ़ना आसान हो गया था। पहला बुर्ज फतह करने के बाद शाहरुख ने इस बुर्ज के ऊपर अपना अलम गाड़ दिया था। नीचे वादी में तैमूर की हदायत पर अभी तक नक्कारों की जंगी जुनून तारी कर देने वाली धुनें सुनाई दे रही थी। ईरानियों ने जब देखा कि उनका एक बुर्ज इनके हाथ से जाता रहा है और यह कि थोड़ी देर तक तातारी लश्कर अलगार करता हुआ ऊपर पहुंच जाएगा, तो उन्होंने किले को खाली कर दिया और कोहस्तान की दूसरी समझ से नीचे उतरकर वो मंसूर के लश्कर में शामिल हो गए। इस तरह जब शाहरुख तूफानी अंदाज में अपने लश्कर के साथ पहाड़ के ऊपर किला सफेद में आया तो किला खाली पड़ा था और ईरानी वहां से भाग चुके थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस जंग में अनगिनत ईरानी मारे गए और किले का कमानदार भी जंग में काम आया और उसकी लाश कपड़ों के गठरी की सूरत में तातारियों के हाथ लगी थी। यूं किला सफेद तातारियों के हाथों फतह हो गया
और ईरानियों को नाकाबिले तलाफी इनफरादी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इस जंग में फतहमंदी के बाद जब किला सफेद पर मुकम्मल तौर पर कब्जा हो गया और तैमूर का लश्कर नीचे वादी में जमा हुआ, तो तैमूर ने आकबोगा को तलब किया, क्योंकि यह फतह उसकी जरूरतमंदी के बाइस हुई थी। जब आकबोगा को तैमूर के सामने पेश किया गया तो तैमूर इस बहादुर से गले लगाकर मिला और इसे मुखातिब करके कहने लगा, ए आकबोगा, चूंकि ये फतह तेरी जुर्रत और शुजाअत के बाइस है, लिहाजा मैं तुझे ऐसे इनामात से नवाजूंगा जो तेरी जवामर्दी के शायाने शान हो। बस तैमूर ने आकबोगा को चांदी के सिक्के, रेशमी कपड़े, ज़रब वफ्त के थान, खैमे हसीन जमील कुनीज़े, घोड़े, खच्चर और ऊंट इतनी तादाद में दिए कि आकबोगा बौखलासा गया था। और जब ये सारे इनामात वसूल करने के बाद वो तैमूर के पास से हटा और लोग इसे इन इनामात पर मुबारकबाद देने लगे, तो आकबोगा ने जवाब में कमाल सादगी के साथ कहा, खुदा शाहिद है, कल तक मेरे पास सिर्फ एक घोड़ा ही था और आज मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे पास इस कदर सामान हो गया है। इन इनामात के अलावा तैमूर ने आकबोगा को तरक्की देकर अपने पोते मोहम्मद सुल्तान के लश्कर के अकबी हिस्सों का कमांडर बना दिया था। इस तरह तैमूर ने एक लश्करी को इसकी जरूरतमंदी का खूब सिला दिया और आकबोगा अपनी मौत तक इस मनसब पर कायम रहा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस जंग के बाद आकबोगा ने कभी तैमूर की तरफ पीठ न की और मरते वक्त इसने वसीयत की कि मुझे इस तरह दफन करना कि मेरे पांव तैमूर के महल की तरफ हो। अपनी जिंदगी में सोते वक्त भी वो तैमूर के महल की तरफ अपने पांव रखने लगा ताकि तैमूर की तरफ पीठ ना हो। किला सफेद पर कब्जा करने के बाद जब तैमूर को ये इत्तला मिली कि लश्कर का मुहाफिज लश्कर दूसरी तरफ से उतरकर मंसूर के लश्कर से जा मिला है और ये कि मंसूर इस मुत्तहिदा लश्कर के साथ शिराज की तरफ रवाना हो गया है ताकि वहां जाकर अपने लश्कर की कुव्वत और तादाद में इजाफा करे और किसी मुनासिब मुकाम पर तैमूर का मुकाबला करे। तैमूर इस मंसूर को यूं आसानी से भागकर शिराज की तरफ चले जाने का मौका न देना चाहता था, लिहाजा इसने मंसूर का ताकुब करने का फैसला कर लिया था। तैमूर ने अपने दोनों पोतों मोहम्मद सुल्तान और पीर मोहम्मद को लश्कर के मेमना और मैसरा हिस्सों के साथ वही छोड़ा और अपने बेटे शाहरुख को लेकर इसने बाकी लश्कर के साथ मंसूर का ताकुब शुरू कर दिया। मंसूर को भी इत्तला मिल गई थी कि तैमूर अपने बेटे के साथ इसके ताकुब में लग गया है। इस ताकुब के दौरान मंसूर अपने लश्कर के साथ एक ऐसी बस्ती के पास से गुजरा जिसके कुछ बुजुर्ग और बूढ़े बस्ती से बाहर खड़े थे। मंसूर के ज़हन में न जाने की आसमाई कि इसने अपने लश्कर को वहां रोक दिया और बूढ़ों को मुखातिब करके इसने पूछा, क्या तुम लोग मुझे बता सकोगे कि शहराज के बाशिंदे तैमूर और मंसूर की इस जंग के बारे में क्या कहते हैं? मंसूर ने इसने यह सवाल इस बिना पर किया था कि वो बस्ती शिराज की मुसाफाती बस्ती थी, लिहाजा वो लोग शिराज शहर की सारी खबरें रखते थे। इन बूढ़ों में से एक ने मंसूर को मुखातिब करके जवाब दिया, शिराज और इसके गिरदोनवा के लोग ये कहते हैं कि मंसूर और इसके लश्करी जो भारी भारी तलवारें उठाए फिरते हैं और जिनके पास वजनी तीर हैं, वो अपने बीवी बच्चों को पीछे छोड़कर इस तरह भागे हैं जिस तरह बकरियां भेड़ियों को देखकर भाग उठती हैं। मंसूर के लिए ताना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन, तारीखी किताबों में इस ताना को तफसील के साथ बयान किया गया है, लिहाजा लोगों के अंदर अपनी शुजाअत बहाल करने के लिए इसने तैमूर के साथ टकरा जाने का फैसला कर लिया था। मंसूर जानता था कि तैमूर इसके ताकुब में चला आ रहा है, लिहाजा इसने अपने लश्कर को वहीं से वापस मोड़ा और जंग के लिए एक मुनासिब जगह पर तैमूर और इसके लश्कर की राह रोककर खड़ा हो गया था। तैमूर जब उस जगह पहुंचा जहां मंसूर अपने लश्कर के साथ घात लगाकर बैठा था, तो अचानक अपनी इस कमीनगाह से निकलकर मंसूर ने इस पर हमला कर दिया और यह हमला ऐसा था कि मंसूर ने तैमूर के लश्कर को हिलाकर रख दिया था और एक बार इसने तैमूर के लश्कर की सफ़ों को धर्म भरम करके रख दिया। गो इस हमले के वक्त तैमूर अपने लश्कर के अकबी हिस्से में था, लिहाजा इसने भी हमले की सख्ती को बुरी तरह महसूस किया था। तैमूर इस हमले की वजह से अपनी जगह परेशान और परागंदा सा खड़ा था कि इसने देखा कि इसके दाएं पहलू से एक और लश्कर नमूदार हुआ। इस लश्कर का सरदार इसके आगे आगे था। इसने अपने चेहरे पर अपने खुद का निकाब गिरा रखा था, लिहाजा तैमूर इसे पहचान न सका। इस नए आने वाले लश्कर के सरदार ने मंसूर के लश्कर पर हमलावर होकर इनका खात्मा करना शुरू कर दिया था। जहां थोड़ी देर कबल तक मंसूर का लश्कर गालिब आता दिखाई दे रहा था, वहां अब नए लश्कर के हमलावर होने के बाइस मंसूर के लश्करी अपने जाने बचाने की खातिर इधर उधर भाग रहे थे। मंसूर ने जब देखा कि इस नए हमलावर की वजह से इसकी सारी तदबीरें नाकाम हो गई हैं, तो इसने एक नई और अनोखी तदबीर अपनाई। अपने लश्कर के उम्दा तरीन सिपाहियों पर मुश्तमिल इसने फिर एक नया लश्कर तरतीब दिया और इस लश्कर के साथ एक मुख्तसर तरीन चक्कर काटता हुआ वो तातारी लश्कर की पुष्ट पर नमूदार हुआ था। मंसूर का इरादा यह था कि तैमूर पर एक जोरदार हमला करके वो तैमूर को कत्ल कर दे और इसके कत्ल हो जाने के बाद न सिर्फ ये कि इसकी फतह यकीनी है, बल्कि इसे हमेशा हमेशा के लिए तातारियों की तुर्कताज और यलगार से निजात मिल जाएगी। इस मकसद को हासिल करने के लिए मंसूर अपने नए लश्कर के साथ तूफानी अंदाज में मारधाड़ करता हुआ तातारी लश्कर की पुष्ट पर उस जगह आ पहुंचा
जहां पर तैमूर अपने मुहाफिजों के साथ तैमूर इस वक्त अपने मुहाफिज दस्तों के दरमियान नए हमलावर होने वाले लश्कर के रंग देख रहा था। इसे मंसूर के इस तरफ आने की तवक्को ना थी और ना ही वो इस तरफ मुतवज्जो था जिस समझ से मंसूर हमलावर हुआ था। मंसूर ने आन की आन में तैमूर के इर्द गिर्द फैली सिपा और इसके मुहाफिज दस्तों को अपने लश्कर के साथ उलझा कर रख दिया और खुद वो अपने मुहाफिज दस्तों के साथ एक तरह सर पर कफन बांधकर तैमूर के सर पर जा नमूदार हुआ। अब तैमूर के अतराफ तातारी और ईरानी होलनाक अंदाज में बरसरे पैकार हो चुके थे। मंसूर जब अचानक तैमूर के मुहाफिज दस्तों को तहे तेग करता हुआ ऐन तैमूर के सामने आ नमूदार हुआ तो तैमूर बौखला कर रह गया। तैमूर अपना हाथ फौरन पीछे ले गया ताकि अपने इस नेजा बरदार से नेजा ले जो हर वक्त तैमूर के साथ रहता था। लेकिन तैमूर को मायूसी हुई इसलिए कि ईरानी इस नेजा बरदार का पहले ही खात्मा कर चुके थे, लिहाजा इसका नेजा बरदार अपनी जगह पर ना था। इस मौका पर तैमूर बुरी तरह मायूसी और खदशात का शिकार होकर रह गया। नेजा बरदार की तरफ से मायूस हो जाने के बाद तैमूर फौरन अपनी तलवार बेनियाम करके मंसूर के मुकाबले में मुस्तैद हो जाना चाहता था, पर इसके तलवार निकालने से कबल ही मंसूर ने अपनी तलवार का वार कर दिया। तैमूर की गिरफ्त में ढाल भी ना थी, लिहाजा मंसूर के इस वार से बचने के लिए इसने अपना सर आगे कर दिया और मंसूर के वार को इसने अपने आनी खोद पर लिया। मंसूर की तलवार तैमूर के फौलादी खोद से टकराई और फिर फिसलकर तैमूर की जिरा पर जा लगी और चूंकि तैमूर की जिरा मजबूत कड़ियों की बनी हुई थी, लिहाजा तैमूर को कोई नुकसान न पहुंचा था। एक दफा वार करने के बाद मंसूर ने दूसरी बार तैमूर पर वार किया। शायद वो हर सूरत में तैमूर को मौत के घाट उतार देना चाहता था, पर दूसरी बार भी तैमूर ने इसकी तलवार को अपने खोद पर रोक दिया था। मंसूर तीसरी बार तैमूर पर वार करना चाहता था कि तैमूर के एक मुहाफिज ने अपनी ढाल तैमूर के सामने कर दी, इसे बचा लिया। इतनी देर तक एक और मुहाफिज भी हरकत में आया और इसने अपने घोड़े को तैमूर और मंसूर के दरमियान हायल कर दिया था। अब तैमूर को कुछ होश आया और इसने अपने अतराफ का जायजा लिया। इसने देखा इसके इर्द गिर्द फैले इसके मुहाफिज दस्तों और दीगर सिपाहियों पर ईरानी तकरीबन गालिब आ चुके थे। इस मौका पर मंसूर ने भी अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया और जब इसने देखा कि ईरानी बच्चे कुछ तातारियों का सफाया करने में मसरूफ है तो इसने वहशियाना अंदाज में जोर से एक नारा मारा ताकि इसके लश्कर इसकी तरफ मुतवज्जो हों। इन्हें एहसास के मंसूर जिंदा है, उनके साथ है और इस एहसास के तहत वो और ज्यादा सरगर्मी के साथ जंग में हिस्सा ले। तैमूर को अब अपनी जान के लाले पड़ गए। इसके चारों तरफ ईरानी फैले हुए थे और अब इसे अपने बचाव की कोई सूरत दिखाई न दे रही थी। इस मौका पर तैमूर अपने चेहरे पर अपने खुद का निकाब डालकर भाग जाना चाहता था, लेकिन हालात ने अचानक पलटा खाया और तैमूर वहां सतून की तरह जमकर रह गया। तैमूर ने देखा जंग के दौरान मंसूर पर जो नया लश्कर हमलावर हुआ था और इस लश्कर का सादार अपने चंद दस्तों के साथ तूफानी अंदाज में ईरानियों का सफाया करता हुआ तैमूर की तरफ बढ़ रहा था। तैमूर अब भी इसे पहचान न सका, इसलिए कि अपने चेहरे पर खुद का निकाब गिराए हुए था। तैमूर ने अपने चेहरे पर गिराया हुआ खुद का आहनी निकाब हटा दिया और अब वो नए लश्कर के इस सरदार की तरफ बड़ी इन्हमाक और तवज्जो से देखने लगा था। वो सरदार लम्हों के अंदर बिफर कर उठते बगोलों और उमड़ते तूफानों की तरह हमलावर होता और अपने सामने मंसूर के लश्करों को मदकूक, मफलूज, माजूर, महकूम, मजबूर और लाचार करता हुआ तैमूर के करीब पहुंच गया। इस मौके पर मंसूर ने अपने इर्द गिर्द लड़ते लश्करों को जमा किया और आगे बढ़कर इसने इस सरदार पर हमला कर दिया था। लेकिन तैमूर की हैरत की उस वक्त कोई इंतहा न थी जब वो सरदार गर्द से शामो सहर बनकर मंसूर पर छा गया। अपने पहले ही हमले में इसने मंसूर की गर्दन काट कर रख दी थी और फिर वो अपने सरदार अपने दोस्तों के साथ जिस तरफ से आया था उसी तरफ चला गया और तैमूर के लश्कर में घुसकर वो मंसूर के बचे कुचे लश्करियों का सफाया करने लगा था। तैमूर अभी तक दूर लड़ते ही सरदार को गौर से देख रहा था। इस मौका पर तैमूर की आंखों में तशक्कुर के आंसू थे और इसने इस सरदार को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ अजनबी सरदार, मैं नहीं जानता तू कौन है और तेरा ताल्लुक किन सरजमीनों से है। ऐ जानिसार अजनबी, मुझे मालूम नहीं तू कौन है और तेरा क्या हस्ब नस्ब है, पर इन सब बातों से बेपरवाह लाताल्लुक होकर अजनबी, मैं तुझे अपना बेटा कहकर पुकारता हूँ। इस मौका पर तैमूर की आंखों से आंसू बुरी तरह बह निकले थे। फिर इसे अपना हाथ फजा में बुलंद करते हुए बहते आंसू के साथ बुलंद आवाज में कहा, ऐ अजनबी, कसम मुझे अपने खुदावंद की, आज से तू मेरा बेटा है। ऐ अजनबी, मैं तुझे अपने लश्कर के कलब का सालार मुकर्रर करता हूँ। तूने अज़्म कोहे ग्रां की तरह दुश्मन के शर्को गर्ब और शुमालो जुनूब को पस्तो बाला करके खून में गर्क कर दिया है। काश मेरी अपनी औलाद में से भी कोई तेरे जैसा होता। तैमूर कहते कहते खामोश हो गए क्योंकि एक तरफ से इसका बेटा शाहरुख अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। करीब आकर वो अपने घोड़े से उतरा और वहां पर पड़ा हुआ मंसूर का कटा हुआ सर इसने उठाकर अपने बाप के कदमों में डाल दिया। जंग अब एक तरह से खत्म हो चुकी थी कि मंसूर के लश्कर की अक्सरियत जंग में काम आ चुकी थी और जो कुछ बाकी था वो अपनी जानें बचाकर भाग गए थे।
तैमूर ने चंद सानियों तक अपने पांव के पास पड़े हुए मंसूर के सर को गौर से देखा। फिर इसने अपने बेटे शाहरुख को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ फर्जंद, अफसोस मैं तेरी तरफ ध्यान न दे सका कि तू कब आया। मैं दरअसल इस अजनबी सरदार को देख रहा था जिसने मंसूर को कत्ल किया और लम्हों के अंदर मैदान जंग पर छाकर इसने दुश्मन की हालत दहकते दोजख जैसी कर दी। ऐ शाहरुख मेरे बेटे, तूने देखा इस अजनबी सरदार ने इस जंग में क्या समा बांधा। इसने न सिर्फ मंसूर को कत्ल करके मेरी जान बचाई बल्कि इनकी हालत सुलगती जान, मुर्दा गुमा, ताबूत की तन्हाइयों और दर्द की तारीख फसीलों जैसी करके रख दी। ऐ अजनबी, मैं तेरी अजमत, तेरी शुजाअत को सलाम। ऐ अजनबी, तेरी जानिसारी, तेरी सरफरोशी को सलाम। शाहरुख ने इस बार हैरत इस्तफहाम में पूछा, ऐ पिदरे मोहतरम, आप किस अजनबी की बात कर रहे हैं? तैमूर ने कहा, वही अजनबी जो ऐन जंग की उरूज में यहाँ वारिद हुआ और मंसूर को कत्ल करने के बाद इसने न सिर्फ मेरी जान बचाकर मुझे हयात नो दी, बल्कि इसने अपने लश्कर के साथ मुद्दतों के रुके हुए तूफानों की तरह हमलावर होकर ईरानियों के लिए इस रज़्मगाह में मुर्दा लम्हों की रूहों और एहसास की वीरान खंडरात के सिवा कुछ न रहने दिया। उसने उस वक्त मेरी जान बचाई जब मेरे चारों तरफ इबलीस ही इबलीस नाच रहे थे। तूने देखा शाहरुख, इस अजनबी ने कैसे दुश्मन के सामने दायरे तंग किए और उन्हें उनके खून में तर करके रख दिया। ऐ शाहरुख, मैंने अपने खुदाबंद की कसम खाकर इससे मुतल्लिक दो फैसले किए थे। एक ये कि इसे अपना बेटा बनाऊंगा, दो ये कि मैं इसे अपने कल्ब का सालार बना दूंगा। तैमूर जब खामोश हुआ तो शाहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ पिदरे मोहतरम, वो जिसने आपकी जान बचाई, वो जो दुश्मन पर लहू की ताज़ा हरारत, रूह की वहशत और सिलसिला करबो फिराक की तरह हमलावर हुआ था, वो कोई अजनबी नहीं है। ऐ मेरे बाप, वो तो नूरुद्दीन है, अपना नूरुद्दीन। तैमूर चंद सानियों तक अपनी जगह पर खड़ा वो कुछ सोचता रहा। फिर इसने तज्जुब हैरत खेज अंदाज में कहा, ऐ शाहरुख मेरे बेटे, हैरत है कि मैं नूरुद्दीन को नहीं पहचान सका, पर इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है। इसके हमलावर होने का अंदाज ही ऐसा वहशियाना और बेबाकाना था कि मैं इसे पहचान नहीं पाया। ऐ शाहरुख मेरे बेटे, गवार है ना कि मैं नूरुद्दीन को इसकी कारगुजारी के बाइस अपना बेटा और अपने लश्कर के कलब का सालार बना चुका हूं। शाहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मेरे बाप, आप एक उम्दा कदर शनास हैं। बाखुदा आपने नूरुद्दीन को वो कुछ दिया है जिसके वो काबिल है। मैं हमेशा इस जैसे भाई और इस जैसे सालार पर फख्र और इसकी कदर करता रहूंगा। शाहरुख के खामोश होने पर तैमूर फिर बोला और पूछा, ऐ मेरे बेटे, तूने कैसे पहचान लिया कि वो अपना नूरुद्दीन है, जबकि अपने चेहरे पर अपने खुद का निकाब गिराए हुए था और मैं तो अंदाजा तक नहीं कर सका कि वो नूरुद्दीन है। तैमूर की इस गुफ्तगू पर और ज्यादा खुलकर मुस्कुराते हुए शाहरुख ने कहा, ऐ मेरे बाप, पहचान तो मैं भी ना पाया था, मैं तो इसे मिलकर आ रहा हूँ। बाखुदा इस जंग में इसने वो काम सर अंजाम दिया है जो हम में से कोई भी अदा न कर सकता था। जिस वक्त इस जंग के दौरान मैं नूरुद्दीन से मिला हूँ, उस वक्त आकबोगा भी वहां था और नूरुद्दीन की इस कारगुजारी पर वो भी खुलकर दाद देते हुए कह रहा था कि मेरी किला सुवैद पर जिस कारगुजारी के बाइस आका तैमूर ने इनामो करामात से मुझे नवाजा था, नूरुद्दीन के इस सरफिरोशाना मार्के के सामने मैं अपनी इस मुस्तैदी को हकीरो कमतर ख्याल करता हूँ। इस मौका पर तैमूर जवाब में कुछ कहना ही चाहता था कि वो खामोश हो रहा, इसलिए कि नूरुद्दीन अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ उन दोनों की तरफ आ रहा था और इस वक्त अपने चेहरे से अपने खुद का निकाब हटाए हुए था। जरा फासले पर आकर नूरुद्दीन अपने घोड़े से एक पुरजोर छलांग लगाता हुआ उतर गया था। शाहरुख ने फौरन भागकर आगे बढ़ा और नूरुद्दीन के कान में कुछ सरगोशी करने लगा। शाहरुख इसे इन फैसलों से आगाह कर दिया जो तैमूर ने इसके मुतल्लिक किए थे। शाहरुख से फारिग होने के बाद जब नूरुद्दीन तैमूर की तरफ बढ़ा तो इस मौका पर तैमूर खुद भी मुस्कुराते हुए वालिहाना अंदाज में आगे बढ़ा और नूरुद्दीन को इसने अपने साथ लिपटाकर इसकी पेशानी चूमते हुए कहा, ऐ नूरुद्दीन मेरे बेटे, बाखुदा इस जंग में अपनी कारगुजारी के बाइस तुमने मुझे खरीद दिया है। तूने साबित कर दिया कि तुम मेरे इन जर्नेलों में सर्रे फहरिस्त हो जिन पर मैं बद से बदतरीन हालात में भी एतमाद और भरोसा कर सकता हूँ। नूरुद्दीन ने अलहदा होते हुए कहा, शाहरुख मुझे इन फैसलों से मुतल्लिक आगाह कर चुका है जो आपने मेरे मुतल्लिक किए हैं। ऐ आका, मैं आपका ममनून हूँ कि आपने मुझे इस कदर अहमियत दी है। नूरुद्दीन की इस गुफ्तगू के जवाब में तैमूर कुछ कहने वाला था कि इसका एक मुहाफिज इसके करीब आया और कहा, ऐ आका, बगदाद के मुफ्ती आजम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं इनसे गुफ्तगू कर चुका हूँ। इन्हें बगदाद के सुल्तान अहमद जलाली ने कीमती तहाइफ के साथ आपसे मिलने के लिए भेजा है और ये मुलाकात इस बिना पर है कि आप आने वाले दौर में बगदाद के सुल्तान अहमद जलाली से अपने ताल्लुकात खुशगवार रखें। वो मुहाफिज तफसील कह चुका तो तैमूर ने कहा, बगदाद के मुफ्ती आजम को मेरे पास बुलाकर लाओ। वो मुहाफिज वापस चला गया और जब वो बगदाद के मुफ्ती आजम को अपने साथ लेकर वापस आया तो तैमूर ने आगे बढ़कर बड़े एहतराम और इज्जत के साथ इनका इस्तकबाल किया। फिर कहा, ऐ मेरे बुजुर्ग,
आप एक मैदान जंग में मुझसे मिलने आए हैं, जहां इस पथरीली जमीन के सिवा बैठने का कोई इंतजाम नहीं है। काश आप मेरे पास समरकंद में आए होते तो मैं आपके शायाने शान इंतजामात करता। जवाब में मुफ्ती आजम ने कहा, मैं जो कुछ कहने आया हूँ वो खड़ा होकर ही कह लूँगा। मैं ये गुजारिश कर दूँ कि मुझे बगदाद के सुल्तान अहमद जलाली ने खैर सगाली के जज्बात के तहत आपकी तरफ रवाना किया है। अभी यहाँ तक की गुफ्तगू हुई थी कि अमीरुल उमरा सैफुद्दीन और चंद दूसरे जर्नल और उमरा भी वहाँ आ जमा हुए थे। इनकी आमद की वजह से मुफ्ती आजम को अपनी गुफ्तगू रोक देना पड़ी। सैफुद्दीन पहले नूरुद्दीन को गले लगाकर मिला, फिर दूसरे सालारों और उमरा ने आगे बढ़कर इससे मुसाफे किया। इसके बाद तैमूर ने मुफ्ती आजम से सबका तारुफ कराया और इनकी आमद की वजह बताई। मुफ्ती आजम अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए फिर कह रहे थे, ऐ समरकंद के अजीम बादशाह, मुझे बगदाद के सुल्तान जलालीर ने इस मकसद के लिए आपकी तरफ रवाना किया है ताकि मैं आपसे इल्तमास कर दूं कि समरकंद और बगदाद के ताल्लुकात तो भाइयों ऐसे रहने चाहिए जहां हम ये तस्लीम करते हैं कि आपने ईरान को मुकम्मल तौर पर अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया है, वहां हम आपसे उम्मीद भी रखते हैं कि आप बगदाद से कोई तारुज़ नहीं करेंगे और आलिम इस्लाम के लिए माजी की तरह बगदाद की मरकजी हैसियत को तस्लीम करते हुए इसका एहतराम करेंगे। मैं आपके लिए अहले बगदाद की तरफ से समरकंद के लिए पुरखुलूस रहने की यकीन दहानी लेकर आया हूँ और अहले बगदाद समरकंद वालों से भी ऐसे ही जज्बात के ख्वाहां हैं। तैमूर ने कुछ सोचा फिर बोला, जहाँ तक बगदाद की इस्लाम के लिए मरकजी हैसियत का ताल्लुक है तो इसके लिए मैं कहूँगा कि ये शहर अब उन दिनों की तरह इस्लामी दुनिया का मरकज नहीं रहा जब हारून रशीद अपने बुज़राए बरामगा के साथ वहाँ अपनी रंगीन और अलिफ लैलवी महफिल गर्म किया करता था। गोई शहर में ताजिर और ज़ायरीन का अब एक हुजूम रहता है, मगर हकीकत में बगदाद शहर अब दरिया दजला के किनारे एक लाश की तरह अकड़ा पड़ा है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, उस दौर के बगदाद से मुतल्लिक अल्लामा इब्न जुबैर लिखते हैं, अब बगदाद पुराने वक्तों के मिटे हुए आसार और अय्याम रफ्ता के अफसाने ही रह गए हैं और जिस तरह किसी हसीन औरत की गुजरी हुई जवानी की यादें ताया करती हैं, इसी तरह ये शहर भी अपने बुढ़ापे में बुझी बुझी आंखों से दरिया दजला को तकता रहता है जो कभी आईने की तरह इसके हुस्न ज़िबाइश की अक्कासी किया करता था। सो मैं कहूँगा अब इस शहर की कोई मरकजी हैसियत नहीं है जो इसका एहतराम करूँ। मैं बहैसियत मुफ्ती आजम आपकी इज्जत अफजाई करता हूँ, लेकिन बगदाद जब भी कभी मेरे रास्ते में आया मैं इसका और इसके सुल्तान का कोई एहतराम न करूँगा। मुफ्ती आजम बगदाद को तैमूर ने ऐसा जवाब इसलिए दिया था कि तैमूर खबीस रूहों और खबीस अमाल की तरह फैलकर अपने आप को चंगेज खां से भी बुलंदी पर देखना चाहता था। अपनी सल्तनत की वसअत की खातिर वो अपने इस खबत और जबर जुल्म की प्यास को हवस के सहरा की तरह फैला देना चाहता था। इसलिए इसने मुफ्ती आजम बगदाद को किसी किस्म की यकीन दहानी न कराई थी। दरअसल तैमूर चाहता था कि बगदाद पर इसका कब्जा हो, वहाँ की मस्जिदों में इसके नाम का खुतबा पढ़ा जाए और वहाँ इसका सिक्का जारी हो। तैमूर जब अपनी बात खत्म कर चुका और खामोश हुआ तो मुफ्ती आजम बगदाद ने इसे तहफ़ पेश किए जो वो बगदाद के सुल्तान अहमद जलाली की तरफ से जज्बा खैर सगाली के तहत अपने साथ लाए थे। कुछ देर तक तैमूर इन तहफ़ को गौर से देखता रहा और मुफ्ती आजम की तरफ से इसने इन तहफ़ को कबूल किया। तैमूर जब तहफ़ कबूल कर चुका तो बगदाद की मुफ्ती आजम ने फिर कहा, ए अमीर तैमूर, मैं आपकी तरफ से बगदाद के सुल्तान को क्या जवाब दूं? तैमूर ने कुछ सोचा फिर अपने घोड़े के पास आया। जीन के साथ लटकी हुई खरजीनों में से एक खाली करके इसने उतार ली। दोबारा वो अपनी जगह पर आया। जमीन पर पड़ा हुआ मंसूर का कटा हुआ सर इसने उठाकर इस खरजीन में डाला जो अपने घोड़े की खरजीन से उतार कर लाया था। फिर वो खरजीन जिसके अंदर मंसूर का सर था तैमूर ने बगदाद के मुफ्ती आजम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरी तरफ से मंसूर का यह कटा हुआ सर बगदाद के सुल्तान अहमद जलाली को पेश कर दें, वो खुद ही सब कुछ समझ जाएगा। तैमूर की इस हरकत पर वहां खड़े सैफुद्दीन, नूरुद्दीन, शाहरुख और दीगर उमरा को मायूसी हुई। बगदाद के मुफ्ती आजम के चेहरे पर भी वीरानियां बिखर गई थी, ताहम उन्होंने जवाब में कुछ न कहा और तैमूर की दी हुई खरजीन लेकर वो वहां से हट गए थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अमीर तैमूर की जिंदगी की हयात व ज़ुल्मात अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।